Hello, everyone, and thank you, Habitat Center, for having given me this opportunity to mark and remember two people who mattered a lot to me. One was, of course, Begum Akhtar, whom I had heard and seen only once in my early youth. But her memory in my mind is inextricably linked to that of my dear friend Salim Kidwai, who passed away in Lucknow just last month. I know it sounds trite and a cliche, but Salim had been one of my closest friends for nearly 30 long years. I had connected with him over music, poetry, gay politics, but our friendship soon became all encompassing and we met several times a week. We discussed everything under the sun and got to know each other's families and friends. Salim had known Begum Akhtar through his Lucknow connections from an early age. Their families had known each other. He had heard her music and he had known of her barrister husband, Ishtiaq Ahmed Abbasi, who was a friend of theirs. But he had really reconnected with her in his youth as a student in Delhi towards the end of 1960s. At that time, the poet Aga Shahid Ali was his close friend, and Aga at that time was teaching English in Hindu College. He was one of the youngest teachers, perhaps a temporary teacher that year, uh, around 72, 73. And I was a first year student. And Aga had used to teach me. Uh, Salim and Shahid became Begum Akhtar's, what should I say, most favorite fans till her death in 1974. But I really got close to Sallu about two decades later. It so happened that a mutual friend had come to visit from London, and we went to meet Sallu at his sister's house in Jamia around 1990. From then on, we saw each other constantly. We shared our lives, our loves, our cities, and places. Sallu could never bring himself to write a book or a text about Begum Akhtar, though he publicly spoke and wrote about her genre of music, the Tawaif community in general. And later he even went on to translate the memoirs of her contemporary Malika Pukhraj, who had been a court singer and dancer at Maharaja Hari Singh's court in Kashmir. In Begum Akhtar's case, he felt that he could not betray the confidence she had reposed in him while giving him access to her personal life. Privately, though, he would open up about those years with her and regale us with many anecdotes and instances. This film was made over many months in 1994. I was working for a TV channel which was yet to be started or had just started, um, called TVI, TV India. And that year also marked 20 years of Begum Akhtar's death. And to mark the occasion, the government of India had released a postage stamp in her memory, and Malka Pukhraj had come down from Lahore to release the postage stamp,
stamp. Uh, and I had met Malka Pukhraj over that occasion, and I thought that maybe this would be a good time to talk to her about the memories of those years, especially her memories with Akhtari. And that's how the idea of this film germinated. As I interviewed Malka Pukhraj, and of course, anything to do with Begum Akhtar had to do with Shanti Hiranand, who was Begum Akhtar's foremost and first disciple, and had spent some 30 odd years in close relationship with her Ammi, as she called her. So between Shanti ji, Salim Kidwai, and a host of other people, especially Saida Bano, Begum Akhtar's friend, Sheila Dhar, and many people, the story of Begum Akhtar emerged through interviews. And this process was documented and later edited to become this film. So I dedicate today's screening of this film that was made now 30 years ago or so, to my friend, my dear friend, Salim Kidwai. Thank you. दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं किस्मत तुम्हें मुझसा ना बना दे। देखने वालों मुझे हंस हंस के ना देखो, वरना कहीं किस्मत तुम्हें मुझसा ना बना दे। सुना है कि 31 अक्टूबर 1974 की रात को दीवाना हशमत लखनऊ की दीवारों पर हाय अख्तरी लिखता फिर रहा था। मुझे हंस हंस के न देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा न बना दे। तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा न बना दे। पे आओ संवरिया देखा देखी बलम होई जाए हमरी अटरिया पे। आओ संवरिया देखा देखी बलम होई जाए हमरी अटरिया। तो राजा जी सातन के लंबे लंबे बाल, तो राजा जी सातन के लंबे लंबे बाल, तो राजा जी सातन के लंबे लंबे बाल। उलझ मत जाना, उलझ मत जाना, उलझ मत जाना, राजा जी बना फैजाबाद में हिंदुस्तान को दो अजीब व गरीब शख्सियतें बख्शी हैं। एक तो उमराव जान, जो मिर्जा हादी रुस्वा की कलम से ऐसी उतरी कि तारीख में बस गई। दूसरी बेगम अख्तर, जो अपनी जिंदगी ही में एक अफसाना बन गई थी। भाइयों में ऐसी भाई पैदा होना दुश्वार,
तवाइफों में ऐसी तवाइफ ही पैदा नहीं हो सकती, वाकई हकीकत है। वो तवाइफ थी ज़रूर, लेकिन गला आवाज़ है सुभान अल्लाह, ऐसा गला आवाज़ दूसरी लता थी वो। इस कदर रंग था उनकी शख्सियत में, हर चीज़ में, कि कोई भी चीज़ फीकी नहीं होती थी, चाहे वो दुख हो या दर्द हो या इश्क हो या हंसी हो या खुशी हो, हर चीज़ बहुत रंग लेके और बहुत उभर के आती थी। वो बहुत शौकीन मिजाज की थी, उनको अच्छे परफ्यूम्स का शौक़ था, अच्छे इत्रों का शौक़ था, और खाने पीने का, अच्छा खाने पीने का शौक़ था। सिर्फ वो करेला नहीं खाती थी, उनको बिल्कुल नापसंद था करेला। और बड़ी खुश मिजाज, सबके साथ बहुत हंसना बोलना, खिलखिला कर हंसना, उनकी हंसी बड़ी मशहूर थी। एक एक्ट्रेस थी वो मेलिना मर्क्यूरी, बिल्कुल वैसी हंसी उनकी थी। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वो माने बहुत सबसे मोहब्बत और सब वो करती थी, और दूसरे उनमें इतना वो था कि वो अल्लाह वाली बहुत थी। बड़ी अच्छी इनकी आदत थी, बड़ा प्यार, बहुत यानी कमीनी नहीं थी। अगर कोई चीज़ पसंद आए या कुछ, मसलन ये दादरा एक था, ये गाया करती थी, तो मैंने कहा अख्तरी ये मुझे सिखा दो, लिखा दो, वो फ़ौरन उसने सिखाया। बहुत दिन बीते सैया को देखे बहुत, हाँ, बहुत दिन बीते। अख्तरी का जन्म फैजाबाद में 1914 में हुआ। माँ मुश्तरी बाई गाने और अदा दोनों में माहिर थी। अख्तरी को गाने की तालीम कई उस्तादों से मिली, जिनमें अता मोहम्मद खां और अब्दुल वहीद खां अहम हैं। जवानी कलकत्ते में बीती, जहां थिएटर में काम करने के अलावा कुछ फिल्में भी हासिल हुई। इसी वक्त मेगाफोन रिकॉर्डिंग कंपनी के जरिए देश भर में अख्तरी बाई का नाम मशहूर होता जा रहा था, लेकिन तबीयत फिल्मों में नहीं लगी और एक जमाने के बाद उन्होंने सत्यजीत रे के कहने पर फिल्म जलसा घर में ये सीन किया था। बहरहाल सन 1940 के करीब माँ बेटी वतन लौटी और लखनऊ के चीना बाजार मोहल्ले में डेरा डाला। अख्तरी को गाने बजाने के लिए अब दूर दूर की रियासतों से न्योते आने लगे थे। इन दिनों से उनकी तबले की संगत मुन्ने खां करने लगे। आज हमें इस मकान पर मुन्ने खां ही लेकर आए हैं। जब मैंने संगत उनके साथ में शुरू की तो वो इस मकान में रहती थी और ऊपर के हिस्से में रहती थी, और उनकी वालदा भी जो है, जिनको बड़े साहब कहते थे, वो भी ऊपर रहती थी, और मैं जो है ये नीचे के हिस्से में जो है वो रहता था। ये छज्जा जो है, यहीं पर रात को 9 बजे के बाद में जो है उनकी वालदा जो है बैठा करती थी। और इस मकान के अंदर बड़े बड़े फंक्शन हुए। इसी मकान के अंदर जो है फ़ैज़ नवाब रामपुर, वो भी आए रज़ा अली खां साहब। तो यहाँ पर ये सीढ़ियों के ऊपर यहाँ से वहाँ तक कारपेट बिछे हुए थे, वो ऊपर जो है नया फर्नीचर था, और उनके लड़के के लिए उन्होंने एक कार ख़रीदी थी। तो जाने उनके जो दावत ख़त्म होने के बाद में वो जितना फर्नीचर, ये कारपेट और कार उनके लड़के को दे दी थी, और बाकी सब उनके मुलाजमीन को दे दिया था। यानी सस्ते ज़माने में करीब कुछ नहीं है तो 50,000 का उन्होंने दिया नवाब को 50,000 का। अब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर कि नवाब क्या देगा, कि जिस आदमी ने 50,000 दिए तो वो कितना देंगे। एक सतलड़ा था रामपुर का जो इनके पास था, अब और वहाँ से वो चली गई, उसको वो भी चला गया, सतलड़ा भी साथ में। वो भी सुना कहते थे नवाब साहब के, इसकी जो
जो आखिरी लड़ी है ये इनके पैरों तक आती है और उसमें कोई ऐसा हीरा है जिससे ज़्यादा चमकदार चीज़ अगर कुछ है तो बेगम अख्तर की मुस्कुराहट, ये वो कहते थे। तो अब उनसे बचने के लिए कि क्या किया जाए, इसलिए रामपुर है, नवाब है, वो ज़ायनिस है, तो उन्होंने इश्तियाक साहब को जो है की तरफ नज़र गई और उनसे उन्होंने अख्त किया। कहूँ कासे शर्म की है बात, कहूँ कासे शर्म की है बात, मोरे शाम कहूँ कासे शर्म की है बात, शर्म की है बात मोरे शाम कहूँ कैसे शर्म की है बात, कैसे शर्म की है बात, शर्म की है बात, कैसे शर्म की है बात, कैसे शर्म की है बात, अख्तरी को निकाह की मंजिल तक पहुंचा पाने में मदद की बेगम सईदा रजा ने, जो उस वक्त AIR लखनऊ में काम करती थी। तो ऐसे एक रोज बैठी हुई थी कि इतने में अख्तरी दाखिल हुई। उनको देख के ही हम खुश हो गए बहुत। फिर वो बैठी और उन्होंने नहायत तमीज़ से कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करना है। मैंने कहा कहिए। तो यानी कि आप इश्तियाक अहमद अब्बासी को जानती हैं? मैंने कहा जी हाँ जानती हूँ, हमारे बड़े मरासिम हैं उन लोगों से, लाइक ए फैमिली मेम्बर। तो कहनी मेरी शादी करवा दीजिए उनसे। तो पहली मुलाकात ना आगे पीछे कोई तमीद नहीं कि कहने क्या आई हो, क्या मतलब है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक जुमला के मेरे काम है शादी करा दीजिए। जैसे उन्होंने कहा वैसी मैंने भी उसको लिया। मैंने कहा क्या देखिए कोशिश कर सकती हूँ, वादा तो नहीं कर सकती। तो उसके ऊपर चमी गोइयाँ हुई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा कि अरे तुम भी क्या बातों में आती हो। बहरहाल वक्त गुजर गया और कोई 1 हफ्ते के बाद ये फिर आई। उस 1 हफ्ते में हमने इश्तियाक भाई को बुलाया अपने घर में, और जिस तरह अख्तर ने मुझसे कहा था कि शादी करा दीजिए, वैसे मैंने उनसे कह दिया कि इश्तियाक भाई अख्तरी से शादी कर लीजिए। जैसी मैंने कहा उन्होंने फ़ौरन मेरे बच्चे को गोद में बिठा कहा कि अख्तों ने पकाई बड़ियाँ और बख्तों ने पकाई दाल, और अख्तों की बड़ियाँ जल गईं, बख्तों का बुरा हाल। मैंने कहा ये सब छोड़िए, मगर उन्होंने छोड़ा नहीं, बात कर आके वो केक खा के चले गए। मगर धीरे धीरे मुझे मालूम हुआ कि ये लोग मिल रहे थे, एक दूसरे से वाकिफ़ थे, और ये चाहती ये थी कि इनको कोई सहारा, मजबूत समाज का सहारा मिल जाए। इस तरह हालात डेवलप हुए कि शादी की नौबत आई। मैं थी, मेरे शौहर थे, और एक नौकर गुलाब था, और मौलवी साहब थे, और अख्तर थी, और इश्तियाक भाई थे। और मैंने अपना निकाह का दुपट्टा इनको उड़ा दिया था, और इस तरह शादी हुई। सलीम, बेगम अख्तर की कहानी में सबसे बड़े एनिग्मा मुझे उनके शौहर इश्तियाक अहमद अब्बासी लगे। आपके ख़ानदान के तो उनसे लंबे ताल्लुकात रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि इश्तियाक अहमद अब्बासी कौन थे, उनके मिजाज कैसे थे, उनकी शख्सियत क्या थी? अब्बासी साहब ताल्लुकदार थे। कहाँ के? काकोरी के, और लंदन में पढ़े हुए थे, बार एट लॉर्ड थे, और गाने का शौक़ था जैसे सब रईसों को होता है। बो टाई लगाते थे, पुरानी शेवले में बैठ के जाते थे कचहरी। मगर कभी हमने उनकी वकालत के तो कोई चर्चे नहीं सुने, ना कभी हमको लगा कि उन्होंने
उनका घर चला उनकी वकालत से। बहुत ही सदरंग किस्म के इंसान थे। सैकड़ों पहलू थे उनके जो कि बहुत ही अंग्रेजी का लफ्ज़ कहना पड़ा चार्मिंग, और बड़े दिल मोह लेने वाले। बच्चों के साथ बच्चों में मिल जाते थे, बड़ों में बड़ों के साथ मिल जाते थे, हमारे साथ हमारी सी बातें कर रहे हैं। वेरी नाइस मैन। बेगम अख्तर की म्यूजिकल वर्थ को समझ पाते थे क्या? बिल्कुल समझते थे, क्योंकि दुनिया बताती थी उनको। एक तरह से खुद वो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी जो थी उसमें काफ़ी अपने को काफ़ी बास्क करते थे, और एक तरह से अल्टीमेट पेट्रन थे। निकाहनामा अपने साथ पर्दे की जकड़न लाया। अख्तरी अब बेगम अख्तर थी और गाना था हराम। कुछ ही दिनों में मां मुश्तरी गुजर गई और बेगम अख्तर बीमारी और डिप्रेशन की शिकार हुई। सुनते हैं कि उनको इतनी तकलीफ थी कि वो बिस्तर में लेट ना पाती थी। तो वो क्या आलम था? वो ऐसे इनके पेट में दर्द उठता था और उसी में की हालत ज़्यादा ख़राब जाती थी, और फिर 2-4 दिन 6 दिन के बाद फिर वो हो जाती नॉर्मल। तो उस ज़माने में इनको दवा लेने की लत पड़ गई थी? हाँ, वो मर्फिया का इंजेक्शन लेती थी और उसमें आदत पड़ गई थी उनको। जब तकलीफ ज़्यादा होती थी तो वो लगा लेती थी। डॉक्टर साहब थे, उन्होंने ये प्रिस्क्राइब किया था, तो उससे उनको तकलीफ़ कम होती थी, तो वो फिर उस तकलीफ़ के ना हो इस वजह से वो लेने लगी, और फिर वो ज़्यादा होता गया। तो वो बहुत ही ख़राब वक्त था, मगर खुदा का शुक्र है कि उन्होंने खुद ही एक दिन छोड़ दिया सब कुछ। इस दौरान क्या उन्होंने गाना मिस नहीं किया? गाना मिस किया उन्होंने। कोई 4-5 महीने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि मेरा विस्की पीने को जी चाहता है। तो मेरी जान निकली कि अब ये विस्की पिएंगी तो हम क्या करेंगे। हमने तो इनका तमाम डंका बजा रखा है, इनकी खूबियों का, इनकी चेस्टिटी का, इनका सबका उसका। खैर इन्होंने पी। मैं शुरू के 5 सालों की बात कर रही हूँ। शुरू के 5 सालों में इन्होंने पीना भी शुरू कर दिया था और मिलती जुलती भी थी, जो ज़रा काबिल एतराज़ था, लेकिन इश्तियाक भाई ने उसे बड़ी खूबी से बर्दाश्त किया और फिर इनको इजाज़त दी कि तुम लखनऊ से बाहर गा सकती हो, लखनऊ में मत गाओ। 7 साल की खामोशी के बाद जब बेगम अख्तर AIR लखनऊ के जरिए फिर गाने लगी तो उनकी परवास को कौन रोक सकता था। छोटी सी बात का बुरा किसी को लगता है, फिर वो ठीक हो जाता है, इंसान आगे चलता है, लेकिन उनको बेहद तकलीफ होती थी। ज़रा सी बदगुमानी हो जाए कहीं तो, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तरह की हो जाए तो उनको वाकई ऐसा लगता था जैसे किसी ने खंजर मारा, और वो खंजर चुभा ही रहता था जब तक कि उसका पूरा मज़ा न ले लें वो। शीला जी, बेगम अख्तर का जब जिक्र उठता है तो गालिब का शेर याद आता है कि इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि हाउ फार वाज लव ए कंडीशन ऑफ लाइफ फॉर हर? It was life for her. It was another word for life, I think.
कि इश्क के बगैर वो नहीं रह सकती थी, और अगर वाकई इश्क ना हो तो वो उसको इन्वेंट करती थी, और उस इश्क में दर्द ना हो, वाकई ना हो, तो वो उसको इन्वेंट करती थी। बड़ी ज़रूरी चीज़ थी उनके लिए कि वो आशिक हों और उसमें तकलीफ़ उन्हें हो, तब उस चीज़ का फ्लेवर, ज़िंदगी का फ्लेवर पूरा उन तक पहुंचता था। कच्ची थी कान की, बेहद कच्ची थी, दोस्त अहबाब नहीं पहचान सकती थी, बेहद झूठ बोलती थी, ऐसे मजे से झूठ बोलती थी। और मैं कह रही हूँ कि तो तुम झूठ बोल रही हो, तो ठट्टे मार रही है। बेहद मोहब्बती थी, बड़ी लिबरल थी, तोहफे तोहफ़े लोगों को बहुत देती थी, और दिल की बहुत बड़ी औरत थी, लेकिन झूठ बोलने में उस्ताद, और वक्ती तौर से हर महफिल को ऐसा खुशगवार बना देती थी कि उनका झूठ और सच सब कुछ माफ़ कर दिया जाता था। देखिए, ऐसा था कि उस ज़माने में तो जो ख्याल गाने वाले थे वो तो ठुमरी दादरा गाते ही नहीं थे, अपनी तौहीन समझते थे। मगर मेरा ऐसा ख्याल है, मेरी अपनी ज़ाती ये ख्याल है कि बेगम अख्तर ने उसको लाके उठा के और कॉन्सर्ट लेवल पे ले आई। वो बस उसके गाना वो एक कुदरती उसमें ऐसी चीज़ थी कि जो दूसरे में नहीं थी। मसलन जिस वक्त उसने गाया दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वो इतना, यानी लोग दीवाने ही हो गए थे उस गज़ल को सुन के। और बेगम अख्तर को अगर उनके कॉन्टेम्पररीज के कॉन्टेक्स्ट में याद करना हो, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी, तो आप कैसे याद करेंगी कि क्या सिमिलैरिटीज़ थीं और क्या कॉन्ट्रास्ट थे? सिमिलैरिटीज़ तो थी रेpertoire की सिर्फ, कि ठुमरी दादरा उनकी भी ज़मीन थी, और हाँ सिद्धेश्वरी जी गज़ल नहीं इतना गाती थी, लेकिन जो चीज़ उनको सबसे अलग करती है वो उनका म्यूज़िकल एटीट्यूड, मैं समझती हूँ कि उसमें इतनी सोफिस्टिकेशन थी कि जिसका ताल्लुक़ उनकी पर्सनालिटी से था सिर्फ, और ये बहुत छोटी सी ज़मीन में बहुत बड़ी बात कर गई, और बहुत नज़ाकत से, बहुत नज़ाकत से। और जो गाने बजाने वाले हैं वो इसको समझते हैं, सबसे ज़्यादा सिद्धेश्वरी जी खुद समझती हैं। रसूलन, आई वुड से इन वन वर्ड, इज़ लाइक ओल्ड ब्रांडी, एंड सिद्धेश्वरी to me is like a bird of paradise who through her heart and soul heavenwards with great energy and great passion. And Begum Akhtar's technique was much subtler. I mean, it was never with effort. You never associated her music with effort. It was something shared, something that was effortlessly stated with great sophistication and restraint. शायरों के साथ उनके क्या रिश्ते थे और क्या इंटरफेस क्या था? कौन से शायर उनकी ज़िंदगी में अहमियत रखते थे? अब सुना, ये सबको मालूम है, बहजाद से उनका ताल्लुक़। बहजाद तो एक तरह के कोर्ट पोइट थे बेगम अख्तर के, साथ साथ उनकी चलते थे, उन्हीं के लिए लिखते थे, और दीवाना बनाना है तो उन्हीं के लिए लिखी गई थी लगता है, मगर वो तो सब तारीख़ी बातें हैं। शकील की बहुत ज़्यादा गज़लें गाई हैं, मगर शकील से कभी हमने उनका इंटरेक्शन नहीं देखा, ना जिगर से देखा। जिगर के बारे में भी क़स्से सुने हैं, खुद भी सुनाती थी जिगर के बारे में क़स्से। कैफ़ी से बहुत अच्छा रिपोर्ट था उनका, बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ थे एक दूसरे से, हंसी मजाक, फ्लर्टेशन भी बहुत होता था दोनों में।
फिराक के सामने एक दफ़ा हम थे जब फिराक से मिली, फिराक की गज़ल गाई थी एक दिन पहले, उसका रिकॉर्ड लेके गई उनके होटल में पहाड़गंज में, सुनाई फिराक को। मगर बहुत से ऐसे शायर थे जो एक तरह से गुमनाम थे, मगर बेगम अख्तर ही की वजह से। उनको ये गुरूर था क्या कि मैं जिसका कलाम गा दूं वो शायर बन गया? गुरूर तो नहीं था बेगम अख्तर तो, अगर गुरूर था तो कभी दिखता नहीं था बेगम अख्तर का, मगर ये ज़रूर था कि अगर बेगम अख्तर किसी गज़ल गा दें तो उससे ज़्यादा शायर को क्या चाहिए। दर्द से भरना क्यों, दिल ही तो है ना संगो खीस, दर्द से भरना। बेगम अख्तर अब चोटी की फनकारा थी। गजल गायकी को तो उन्होंने नया आयाम दिया था, मगर आखिर के सालों में शराब और डिप्रेशन के फेरे में फिर डूबने लगी थी। सलीम किदवाई से हमने पूछा उनके गम क्या थे। गम तो वही थे कि जहाँ तक हमारी समझ में है, अब बेगम अख्तर क्या थी उनको कौन समझता था ये हमको नहीं मालूम, मगर जो हमारा अंदाज़ा वो है वो ये कि उनको खुद को नहीं मालूम था कि उनको क्या चाहिए। जो कुछ चाहा था वो तो मिल तो गया था उनको, कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि जो बेगम अख्तर को ना मिली हो। गाना सब अप्रिशिएट करते थे, आखिरी ज़िंदगी में ऐसी कोई पैसे की तंगी नहीं थी, दोस्त थे, चाहने वाले थे, मगर जैसे जैसे सब आर्टिस्ट को होता है कि एक ऐसी सर्च थी, एक ऐसी कोई नीड थी जो खुद भी शायद नहीं समझती थी, और वो तो अगर ना होती तो शायद बेगम अख्तर ना होती। मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना। 30 अक्टूबर सन 1974 को अहमदाबाद में बेगम अख्तर का दिल के दौरे से इंतकाल हो गया। मां मुश्तरी के साथ उन्हें लखनऊ के पसंद बाग में दफनाया गया।